صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے کہا کہ اے اللہ آپ مجھے دنیا میں بھیج تو رہے ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا والے میرا حق ادا نہیں کریں گے، مجھے کاٹیں گے، مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ جو تجھے جوڑے اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں، جو تجھے توڑے اس کو میں اپنے سے توڑ کے رکھ دوں؟ فرمایا بالکل میں اس بات پہ راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑے گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ اس بندے کو اپنے سے کاٹ کے رکھ دے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے، تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے، عمرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے، بالکل قرب ملتا ہے، لیکن شرط یہ کہ اس قرب میں کوئی رکاوٹ تو نہ ہو۔ یہ عزیز و اقارب کے ساتھ بدسلوکی اور یہ لڑائی جھگڑے اور یہ سرد جنگ چلائے رکھنا اور یہ کینہ اور بغض پالتے رہنا، یہ قرب خداوندی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خاندانوں میں، برادریوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، ناراضگی کے بعد پھر لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا دیا، اب یہ نہیں ہو سکتا، میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری ناک کٹ جائے گی، میری انا کا مسئلہ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہو چکی تھی وہ انا کی وجہ سے ہو چکی تھی۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں ہوں، میں، یہ انا کا معنی میں نے کام خراب کر رکھا ہے۔ شیطان نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، انا کام خراب کر دے۔ اور اگر برادری میں کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اگلا بندہ اپنی انا کو قربان کر دے، اپنی انا کو قربان کر کے تھوڑا سا اپنا سر جھکا لے، یقین کریں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عزت اللہ کے ہاں ہے، دنیا والوں کے سامنے شاید لوگ یہ کہہ دیں کہ اس کی تو عزت ختم ہو گئی، حالانکہ عزت اللہ نے دینی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے دنیا والے اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ غار حرا میں تھے، ایک اچانک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اندھیری رات کا وقت تھا، غار حرا میں فرشتہ آیا، جو معاملہ پیش آیا تھا آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ طبعی طور پہ فکر مند تھے، فکر مند اس بات پہ تھے کہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ آیا ہے، پورا مکہ نہیں پورا علاقہ اس میرے پیغام کا مخالف ہوگا، میرا کیا بنے گا، میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا؟ تو پریشان تھے، گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنے اوپر ڈر رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی، بہت حوصلے والی خاتون تھی۔ جس وقت کے پیغمبر بھی فکر مند تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا، تسلی دی، کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخاری شریف کی روایت، کلا ہرگز نہیں، واللہ قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے۔ رسوا کیوں نہیں ہوں گے؟ حضرت خدیجہ نے اگلی بات کی، وہ بخاری شریف کی روایت یاد رکھنے والی بات ہے، انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، اور جو بندہ رشتے ناتے جوڑنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ لا یخزیک اللہ ابدا،
अल्लाह आपको हरगिज रुसवा नहीं फरमाएंगे। तो गोया कि सिला रहमी करने वाले कभी रुसवा नहीं होते। और क़ता रहमी का जो नुकसान है मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंजुरु इलैहिम। 3 बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इनके साथ क़ियामत के दिन हम कलामी भी नहीं फरमाएंगे, उनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, कलाम भी नहीं फरमाएंगे और उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो 3 बंदे कौन से हैं? उनमें से एक बंदा मुसद्दिकुस साहिर, मुसद्दिकुल काहिन, जो बंदा काहिन होता है, काहिन की बातों की तस्दीक करने वाला, अल्लाह इसकी तरफ नहीं देखेगा, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बात नहीं करेगा, अल्लाह नाराज होगा। काहिन की तस्दीक करने वाला, काहिन कौन होता है? वो जी घर में चोरी हो गई तो ज़रा फलां जगह पे एक बंदा हिसाब लगाने वाला है, ज़रा उससे हिसाब लगवा लो। वहाँ चले गए, वो उल्टी सीधी लकीरें खींचता है और बाद में आके कह देता है कि बस अपनों में से किसी ने चोरी की है, घर के अफराद में से कोई बंदा है जिसने चोरी की है। बस फिर जो ही घर का फर्द बोला है तो फौरन जहन बहू की तरफ चला जाता है कि वो बहू ने ही ये काम किया हो। बस फिर घर के अंदर जो झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर बिरादरी तक ये झगड़े तूल पकड़ते हैं, अपनों में से किसी ने कुछ किया है। शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, चलो फलां बंदे से हिसाब करवा लो। हिसाब वाले के पास चले गए, ओहो तुम्हारे ऊपर तो बंदिश हो चुकी है। अच्छा बंदिश किसने की है? अपनों में से किसी ने की है। फिर हम सोचते हैं कि हाँ वो चचा लोग आए थे ना उस बच्ची का रिश्ता मांगने के लिए, फिर हमने उनको इनकार कर दिया था, बस उन्होंने हमारे रिश्ते को बांध लिया है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, ये बांधने का काम भी अल्लाह का है और खोलने का काम भी अल्लाह का है। दुनिया वाले न किसी के रिश्ते बांध सकते हैं, न किसी की औलाद बांध सकते हैं, न किसी की रोजी रोटी बांध सकते हैं। ये हमारी गलत फहमी है। मुसद्दिकुल काहिन, काहिन की तस्दीक करने वाला, उसकी बात पे यकीन करने वाला कि हाँ इसने सही बात की है, उस पे यकीन करने वाला, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से नाराज़ होगा। वह मुदमिनुल खमर, जो शराब का आदी होता है, शराब पीता है, अल्लाह इससे नाराज़ होगा। और चौथा बंदा वक़ातिउर रहम, जो अजीज़ व अक़ारिब के साथ रिश्ते नाते तोड़ता है, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसके साथ बात भी नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, नाराज़ होगा। और इसी तरह जो लोग अजीज़ व अक़ारिब के साथ रिश्ते नाते तोड़ते हैं उनके लिए जन्नत हराम है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, क़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हम नमाजें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, तिलावत करते रहें, बेशक हज कर लें, उम्रा कर लें, जब तक अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे तब तक जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमरात के दिन बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आमाल ऊपर को जा रहे होते हैं आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आमाल ऊपर जा ही नहीं सकते। वो 2 बंदे जो एक दूसरे के साथ नाराज़ होते हैं, सलाम कलाम बंद किया हुआ है, ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं, इनके आमाल ऊपर नहीं जाते। अब हम पढ़ते रहें नमाजें, रोज़े रखते रहें, जब तक अजीज़ व अक़ारिब के साथ रिश्ते नाते बहाल नहीं करेंगे तब तक हमारे आमाल ऊपर को नहीं जाएंगे, अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होंगे। मेरे भाइयों, इख्तिलाफात भी होते हैं, छोटी छोटी बातें ख़ानदानों में पेश आती हैं, बिरादरियों में बातें पेश आती रहते हैं। ये तबई बात है, ये फिक्री बात है, ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उन बातों को तूल देना, फिर सर्द जंग चलाए रखना और एक दूसरे के साथ देर तक नाराज़गियाँ रखना, सच्ची बात है सगे बहन भाइयों के दरमियान ऐसी नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं कि सालों गुजर जाते हैं, भाई अपने बहन के घर नहीं जाता। न सिर्फ ये कि वो अपनी बहन के घर नहीं जाता बल्कि बहन को भी कहता है कि आज से मेरे घर के दरवाजे तुझ पे बंद हैं। वो अपने बहनों पे अपने घरों के दरवाजे बंद करने वालों, कभी सोच भी लिया करो कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ने कुछ लोगों पर जन्नत के दरवाजे बंद कर देने हैं।
ऐसा तो ना हो कि उस वक्त अल्लाह हमें कह दे कि सगी बहनों पे आपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो मेरा और तेरा क्या ताल्लुक है कि तू जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करता है। कई मर्तबा दूसरों की खातिर अपनों के साथ हम बाहम दस्त गिरेबान हो जाते हैं। माजरत के साथ आजकल ये इंतखाबात का दौर है। इंतखाबात में लोग अपने लीडरों की मोहब्बत में इतने आगे निकल जाते हैं, इतने आगे निकल जाते, अल अमान वल हफीज, सगे भाई एक दूसरे के साथ बाहम बरसरे पैकार हैं। वो दोस्त अहबाब जिनके साथ सालों पुरानी दोस्ती थी, जिनके यहाँ आना जाना सिर्फ इसी सियासी इख्तिलाफ की वजह से हम उनके साथ दोस्ती ख़त्म कर देते हैं, ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। ये कौन सी दानिशमंदी है। लीडरान को इतनी अहमियत दें जितनी अहमियत वो आपको देते हैं। हाल हमारा ये है, कभी इन बड़े बड़े लीडरान से मुसाफिया करने की कोशिश तो करें ना। जब वो स्टेज पर हों तो आप स्टेज पे चढ़ने की कोशिश तो करें। कैसे तुझे धक्के दे के दूर जाके फेंक दिया जाता है। तू कौन होता है लीडर से मुसाफिया करने वाला। जिस लीडर से मुसाफिया करने का शरफ हमें हासिल कभी नहीं हुआ, उनके दरवाजे पे बैठ जाएं, पूरा पूरा दिन बैठे रहें, मुसाफिया नहीं करेंगे, चाय पिलाना तो बहुत दूर की बात है। कभी उनको कॉल करके देख ले, आपका फ़ोन भी अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन उन ही लीडरान की खातिर उन दोस्तों को हम नाराज़ कर देते हैं, उन रिश्तेदारों के साथ रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं जिनके साथ हमारा सालों का पुराना ताल्लुक होता है। इन्हें हैरान की होती। मैं माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, मैं किसी लीडर का नाम लूँ तो आप नाराज़ हो जाएंगे। मैं कहता हूँ फलां लीडर की खातिर अपने चाचा को नाराज़ कर किया जाता है, फलां लीडर की खातिर मामू को नाराज़ किया जाता है, चचाजाद भाइयों को नाराज़ किया जाता है, सिर्फ उस लीडर की खातिर जिस लीडर को सिर्फ हमने सोशल मीडिया पे देखा है या टीवी पे देखा है। कभी आमने सामने करीब से देखने की सआदत भी हमें हासिल नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते नाते बहाल रखें, क्योंकि बाद में हमने ज़िंदगी इन्हीं लोगों के साथ गुजारनी है। हुकूमतें आती हैं और चलती हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई असीर आज़म है, कोई तख्त पे है, कोई तख्ते पे है। ये तो हम देखते चले आ रहे हैं, खेल तमाशा चल रहा है और हम हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं।